Now, if a comma b comma c are the roots of x cube minus x square minus 2 is equal to 0, find a cube plus b cube plus c cube is equal to question mark. Now, we remember that a cube plus b cube plus c cube is nothing but a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca plus 3abc. So if you see, you have sum of the roots, you have product of the roots, you have sum of the product of two roots, everything is given. Now according to the equation, x cube minus x square minus 2 is equal to 0. We take that a, b and c are the roots. तो सबसे पहले sum of the roots is nothing but summation a, which is minus b by a, which is nothing but I will get as minus b by a, so minus of minus 1 upon 1, which is equal to 1. Next is sum of the product of two roots, summation ab. Okay, x term है नहीं, so summation ab will become this, and product, this is the sum of the product of two roots. ये two roots का sum है, ठीक है. And next होता है product of the roots. Product is abc is equal to minus 1 raised to n, that is minus cube constant upon a, which is constant is minus 2. So minus 1 raised to 3 into minus 2, which is equal to 2. And now when I substitute here, so sum of the roots becomes 1. अब आता है a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. This formula is not available to us, but we know that a square plus b square plus c square is equal to a plus b plus c the whole square minus twice of ab plus bc plus ca. And we know that sum of the roots is minus 1. So this will become minus 1 square minus 2 into 0, which is 1. So I have the entire value of a square plus b square plus c square, that is 1, minus sum of the product of two roots is 0. अभी तो 1 यहाँ पे भी अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज 0, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये हो गया, बी हो गया, प्लस थ्राइस ऑफ ए बी सी का वैल्यू इज 2. And therefore if I solve this, this will become 1 plus 6, which is equal to 7. So my answer becomes, therefore my value of, यहाँ पे पूछे therefore a cube, therefore the value of a cube plus b cube plus c cube becomes 7. A very important question, a very important formula. This is a very important formula. Okay, a lot of people write it as a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to this, is the same thing. So this is the formula for a cube plus b cube plus c cube. Now the next topic is transformation of quadratic equation. Transformation of quadratic equation. Transformation of quadratic equation. Okay. अब they will tell you कि कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, क्या ट्रांसफॉर्म करना है. We use this when you have to transform this. Say for example, we can write a formula, we can write a step saying that equation is given. ठीक है, तो equation is given to you. We use this when equation is given. Okay, equation is given and with roots. एक काम करते हैं, equation is given with roots and new equation is asked. Okay,
new equation asked with transformation of roots. New equation is asked with transformation of roots. Okay, new equation is asked with transformation of roots. Example देता हूँ. समझो मैंने लिख दिया ax square plus bx plus c is equal to 0. इसका रूट्स एज यूजुअल हम लेंगे अल्फा एंड बीटा. Equation is given with roots. New equation is asked with transformation as roots. They have asked ax square plus bx plus c is equal to 0 where alpha and beta are the roots. Alpha and beta are the roots बोला है. So they have said the given roots. Okay. यहाँ पे लूँगा given roots. Given roots को मैं लूँगा alpha comma beta. I have taken the given roots as alpha comma beta. ठीक है. मैंने गिवन रूट्स ले लिया अल्फा कॉमा बीटा. अब न्यू रूट्स पूछा है. वन अपॉन अल्फा कॉमा वन अपॉन बीटा. ओके, ध्यान से सुनो. मुझे क्वाड्रेटिक दिया, मुझे बोला है अल्फा बीटा रूट्स है, मतलब सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. मतलब एक्स के जगह आई कैन पुट अल्फा, एक्स के जगह आई कैन पुट बीटा. अगर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन भी हो गया दैट इज y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. आई नो दैट अगर मैंने ये इक्वेशन y में ले लिया, समझो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी ले लिया, मैंने इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन y ले लिया, स्टिल माय इक्वेशन विल बिकम ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0. मुझे बोला है कि भाई न्यू रूट्स आर वन अपॉन अल्फा एंड वन अपॉन बीटा. अब इसमें क्या होता है पता है क्या, जैसे मेरे को न्यू रूट्स आ गया तो हम लोग समझेंगे कि क्या चेंज हुआ. चेंज कुछ नहीं हुआ. जहाँ पे यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स था, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/x. मतलब x इज नथिंग बट 1/x. दे आर रेसिप्रोकल. मेरा एक्चुअल रूट अल्फा था, बोला कि अभी वन अपॉन अल्फा हो गया. मतलब जहाँ पे मैं x डाल सकता था वहाँ पे मैं 1 अपॉन x डालूंगा. तो बेसिकली माई चेंजेस इन प्लेस ऑफ y आई विल पुट 1 अपॉन x. मतलब इन प्लेस ऑफ x आई पुट 1 अपॉन y. ट्रांसफॉर्म हो गया मेरा रूट्स. ओल्ड रूट्स गिवन है, न्यू रूट्स क्या पूछा है वो भी दिया है. माई चेंज इज x इज इक्वल टू 1 अपॉन y. अब जैसे चेंज इज इक्वल टू 1 अपॉन y हो गया, अब देखो आई विल पुट x का वैल्यू हियर a इंटू 1/y स्क्वायर प्लस b इंटू 1/y प्लस c इज इक्वल टू 0, which will become a plus by plus cy square equal to 0. a plus by plus cy square is equal to 0 and therefore इसके बाद a plus by plus cy square equal to 0 and therefore my equation will become, and last में हम लोग डालेंगे कि मेरा new equation, my new equation यह a plus by plus cy square and my new equation will become cx square plus bx plus a is equal to 0. So last में क्या किया है, I have started with this. यहाँ पे I can put x का वैल्यू अल्फा एंड बीटा, बट बोला है कि नहीं, now my new roots है, ट्रांसफॉर्म हम रूट्स कर रहे हैं 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, y is equal to 1 upon x, x is equal to 1 upon y. ये सिंप्लीफाई किया and last में your new equation, since your question is in terms of x, my answer will also be in terms of x. Therefore it becomes cx square plus bx plus a is equal to 0. This is the new equation. ये है मेरा न्यू इक्वेशन है चेंज के साथ. अब अगर इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, समझो वापस लेते हैं कि ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay, same alpha and beta the roots. अल्फा एंड बीटा द रूट्स. तो सबसे पहले सेम टॉपिक सी, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि मेरा गिवन रूट्स क्या है, गिवन रूट्स एंड न्यू रूट्स क्या है. सो सबसे पहले इफ आई राइट गिवन रूट्स, माय गिवन रूट्स आर अल्फा कॉमा बीटा. आप लोग देखेंगे न्यू रूट्स क्या बोले. समझो न्यू रूट्स दिया है रूट अल्फा, न्यू रूट्स दिया है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. ठीक है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन रेसिप्रोकल था. अब यहाँ पे दिया है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मतलब चेंज क्या होगा देखो, y is equal to x square, therefore x will become root y is equal to x square, तो x will become root y. अब अगर मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया
तो ये हो जाएगा a इंटू रूट वाई स्क्वेयर प्लस b इंटू रूट वाई प्लस c इज इक्वल टू 0. Therefore ay plus b root y plus c is equal to 0. And last में my new equation will become y की जगह x हो जाएगा तो ax plus b root x plus c is equal to 0. And this is your new equation. तो हमने कुछ नहीं किया है. Whatever is the change, I've just communicated that in terms of this equation. यहाँ पे x is equal to root y हो गया था, और अगर previous में देखेंगे तो यहाँ पे y is equal to 1 by root x, therefore x is equal to 1 by root y. तो reciprocal है. तो this is a reciprocal. You can solve this using transformation of roots. अब इसका क्वेश्चन आ गया अगर, ठीक है, let's try to understand the question. कि the question says, समझो मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन है and I say that alpha, beta, gamma are the roots. Alpha, beta, gamma are the roots of the equation. Alpha, beta, gamma are the roots of the equation. ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0. Okay. Form an equation whose roots are alpha plus 2, बीटा प्लस 2, गैमा प्लस 2. अच्छा, तुम लोग बाकी मेथड से भी कर सकते हो. हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक्स क्यूब क्वाड्रेटिक करके तो एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये उससे भी कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब माय रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, तो यू फाइंड सम ऑफ द रूट्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालो, अल्फा बीटा द होल स्क्वायर का वैल्यू निकालो, यू विल गेट द सेम आंसर. तुम लोग आंसर डिफरेंट नहीं रहेगा, सेम ही आंसर आएगा. बिकॉज यू हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक. वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट न्यू वेज की ट्रांसफॉर्म. अगर मेरा रूट्स अल्फा बीटा की जगह में कुछ और ले लिया, आप देखो ये क्वेश्चन में दे हैव सेड अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, form an equation, alpha, beta and gamma are the roots, form an equation whose roots are alpha plus 2, beta plus 2 and gamma plus 2. अब मुझे पता है ये x को रिप्रेजेंट करता है, मतलब अगर मैंने इक्वेशन में, इस इक्वेशन में x की जगह अल्फा डाल दिया तो इट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर x का रूट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा. सो ये ना, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसका मतलब होता है y इज इक्वल टू x प्लस 2, देयरफॉर x will become y minus 2. y is equal to x plus 2. Therefore, x will become y minus 2. अब कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा. So a into y minus 2 the whole cube plus b into y minus 2 the whole square plus c into y minus 2 plus d is equal to 0. Therefore, अगर मैंने इसको एक्सपांड किया, this will become y minus 2 the whole cube, y minus 2 the whole square, y minus 2 plus d. a minus b the whole cube is a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube equal to 0. अब लास्ट में अगर मैंने एक्सपांड किया, लास्ट में all I have to do is I have to just substitute in place of y. So this will become a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube plus b into y square plus 4 minus 4y plus cy minus 2c plus d is equal to 0. Now if I substitute, तो देखो ये ना y square y cube what terms है, so this will become ay cube minus 6ay square plus 12ay minus 8a plus by square plus 4b minus 4by plus cy minus 2c plus d is equal to 0. Now I have to make sure, सबसे पहले my y cube terms, तो मैंने लिख दिया a y cube, ये हो गया y cube, और कोई y cube टर्म नहीं, स्क्वायर ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, देयर इज नो स्क्वायर टर्म. तो अगर मैंने प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, इट विल बिकम माइनस 6a प्लस b. सो b माइनस 6a, फिर आगे आ गया मेरा y टर्म,
दिस इज फर्स्ट वाई टर्म, दिस इज सेकेंड वाई टर्म एंड दिस इज थर्ड वाई टर्म. तो अगर गाइज मैंने प्लस वाई कॉमन ले लिया, दिस विल बिकम 12a minus 4b plus c. 12a minus 4b plus c. And last में आता है मेरा constant, that is 8a 4b minus 2c plus d plus minus 8a plus 4b minus 2c plus d is equal to 0. And now I can say this ax cube plus x square b minus 6a plus y 12a minus 4b plus c plus 4b plus d minus 2c minus 8a is equal to 0. So this is your new equation. Obviously you can leave it here also कि ये मेरा आंसर है. Whenever I simplify in place of x I can put y. So this is the equation that I have got. If we solve, say for example, let's do one more question. Okay, my question says कि my equation is 5x square minus 7x plus 3 is equal to 0. My roots are alpha minus 1, alpha plus 1, beta minus 1, beta plus 1. ठीक है, इसका मतलब होता है कि मेरा y का वैल्यू इज x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1. आई सिंप्लीफाई दिस, तो एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1. तो y में हो जाएगा बेसिकली x का वैल्यू क्या हो जाएगा, मुझे x का वैल्यू निकालना. सो आई टेक एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1. देयरफॉर इफ आई टेक x कॉमन तो हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन माइनस वाई प्लस 1. तो x विल बिकम y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई. ये हो गया मेरा x का वैल्यू. अब मुझे x की जगह ये सब्स्टिट्यूट करने का है. सो दिस विल बिकम 5 इंटू 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई द होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0. इन अदर वर्ड्स दिस विल बिकम 5 इंटू 1 प्लस वाई द होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई प्लस 3 इंटू 1 माइनस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सॉल्व करो इसको, नॉर्मली सॉल्व करेंगे. एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, लास्ट में इन प्लेस ऑफ y व्हेन यू पुट x, दैट इज द इक्वेशन formed using when the roots are alpha minus 1 and alpha plus 1. Have you understood this? तो very important, a very short topic, transformation of roots. ये तुम लोग नॉर्मली भी कर सकते हैं, वो भी ना बहुत लेंदी हो जाएगा. अब समझो तुम लोग इसका सम ऑफ द रूट्स निकाल रहे हो, इसका प्रोडक्ट निकाल रहे हो, तो इट विल बिकम, अपने आप में बहुत लेंदी हो जाएगा. एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब यहाँ पे देखेंगे तो यूल गेट अल्फा बीटा प्लस बीटा, यहाँ पे विल गेट अल्फा बीटा माइनस बीटा प्लस 1. सम ऑफ द रूट्स उसमें भी होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स उसमें होगा. सो विच एवर मेथड इज कन्वीनियंट फॉर यू. अब वो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, नॉर्मल मेथड इज कन्वीनियंट. यू कैन सॉल्व दिस सम्स बाय दोज मेथड. ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं. लेट p of x be a cubic polynomial with zeros alpha beta gamma. Okay, if p of minus 2 plus p of 2 upon p of 0 is equal to 74. Find वन अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा गैमा प्लस 1 अपॉन गैमा अल्फा. ओके, ये निकालना है वैल्यू. आई हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, and this value is given as p of minus 2, p of 2, p of 0, 74, 1 upon alpha beta plus 1 upon beta gamma plus 1 upon gamma alpha. And this is the value that is given to us. Okay, और कुछ पूछा है? कुछ नहीं पूछा. क्यूबिक पॉलिनोमियल. जैसे मुझे ये वर्ड दिखा क्यूबिक पॉलिनोमियल, मैंने लिखा लेट px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d.
ये मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब मैंने यही क्यों इक्वेशन लिया, p of -2, p of 2 और p of 0 का वैल्यू निकालना ही है। सो आई नीड सम इक्वेशन टू सब्स्टिट्यूट दीज 3 रूट्स। एंड ध्यान से क्वेश्चन देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला है तो 3 रूट्स दिए हैं। आई नो दैट माई 3 रूट्स आर गोइंग टू बी -2, my first root is going to be -2, my second root is going to be 2 and my third root is going to be 0. So अगर ये है मेरा इक्वेशन, now all I have to do is I have to just substitute the values. अब if I find p of 0 निकालते हैं, p of 0 का वैल्यू d आ गया। Let's find out p of -2. अगर मैंने p of -2 डाला तो हो जाएगा a into -2 क्यूब प्लस b into -2 स्क्वायर plus c into -2 plus d, which is -8a plus 4b minus 2c plus d. This is p of -2. And next value is p of 2. Guys, p of 2 में ना same ही चीज़ होगा, but everything will be positive. So a into 2 cube plus b into 2 square plus c into 2 plus d, which is 8a plus 4b plus 2c plus d. (8a plus 4b plus 2c plus d). This is p of 2. This is p of -2 and p of 0. अभी वैल्यू दिए हैं मुझे, and they have asked कि find the root of alpha beta, beta gamma, alpha gamma. ठीक है, प्रॉब्लम क्या होने का, टू मेनी इक्वेशंस इन्वॉल्व, टू मेनी इक्वेशंस। यहाँ पे सिर्फ d आ गया, बट हियर 8a 4b 2cd -8a 4b -2c plus d, p of 0, p of 2, p of -2. If I do p of 2 plus p of -2, if I do p of 2 plus p of -2, देखो p of 2 plus p of -2 तो हो जाएगा -8a plus 4b -2c plus d plus 8a plus 4b plus 2c plus d। ये निकला, ये निकला, ये निकला, ये निकला। आई एम लेफ्ट विथ, दोनों का एडिशन है सिर्फ, आई एम लेफ्ट विथ 8b plus 2d। आई एम लेफ्ट विथ 8b plus 2d। ये है p of 2 plus p of -2। and this is equal to 74। 74 दिया ना, yes, they have given it 74। तो if I substitute, चलो, therefore I will write 8b plus 2d upon d is equal to 74। दिख रहा है कि ना डिविजिबल बाय 2 हो रहा है, so 4b plus d upon d is equal to 37। 4b by d plus 1 is equal to 37। 4b by d is equal to 36। ठीक है, 36 तक आ गया। जैसे 36 तक आया, b upon d is equal to 9। I can say b is equal to 9d। Okay, I can say b is equal to 9d। अब अगर b is equal to 9d आ गया, b upon d is equal to 9, b is equal to 9d आ गया, b upon d is equal to, दोनों लिख दिया मैंने। Let's look at this। Okay, let's look at this। मुझे इसका वैल्यू निकालना है, रूट बाद में निकालेंगे। But if someone tells me what is 1 upon alpha beta plus 1 upon beta gamma plus 1 upon gamma alpha, अगर गाइज मैंने इसका LCM लिया, अगर मैंने इसका LCM लिया, यहाँ पे गैमा मिसिंग है, यहाँ पे बीटा मिसिंग है, यहाँ पे अल्फा मिसिंग है, सो आई विल गेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा अपॉन, यहाँ पे गैमा मिसिंग है, यहाँ पे अल्फा मिसिंग है, यहाँ पे बीटा मिसिंग है, अपॉन अल्फा बीटा गैमा। ओके, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा अपॉन अल्फा बीटा गैमा। अब देखो इसका फॉर्मूला सम ऑफ द रूट्स, इसका सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। I know that इसका sum of the roots will become -b upon a and इसका product of the roots will be d upon a। So if I substitute, it will become -b upon a and d upon a, -b upon a and d upon a। Okay,
अभी माइनस डी अपॉन, सॉरी माई मिस्टेक, माइनस डी अपॉन, ये निकला ये निकला ये निकला ये निकला, बी अपॉन डी का वैल्यू इज 9 एंड अगर मैंने यहाँ पे रूट डाला, ये पूरा चीज़ रूट में आ जाएगा एंड रूट 9 will give you the answer as 3. A very 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 important, very basic sum. यहाँ पे ना you have to be careful. इसके बाद people get stuck. ऐसे नहीं wrong आएगा तुम लोग. I'll tell you what you'll do. You'll take D on the left hand side. You'll get 4B is equal to 36D. You will still get the same answer. You will still get this. So we have not done anything extraordinary. कुछ नहीं extraordinary किया. तुम लोग सिर्फ D लेके जाओगे यहाँ पे. I've just what I've done is I've just separated it and I've got the same ratio, that is B is equal to 9D. एंड जैसे मैंने एलसीएम लिया इसका, तो यहाँ पे गैमा मिसिंग था, यहाँ पे अल्फा मिसिंग, यहाँ पे बीटा मिसिंग है. ऊपर हो गया सम ऑफ द रूट्स, नीचे हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. माइनस बी अपॉन माइनस डी हो गया था. बी अपॉन डी इज 9 एंड माई आंसर इज 3. Did you guys understand this? A very simple question, very basic question, but a very important question. The last topic of quadratic equation and one of the most important is the topic called as location of roots. Location of roots, the last topic. There are 4 profiles. Whenever you start with quadratic, you have to make sure that profile 1, 2, 3, for all the 4 profiles, along with the method that we write, you need to remember each and every method and each and every profile. So the chapter comes to a close once you have done location of the roots. So what do you understand by location of the roots? You have to just understand कि if मेरा quadratic equation है, या तो रूट्स एक्सट्रीम पे रहेगा, या तो रूट्स उसके ऊपर रहेगा, या तो रूट्स उसके बीच में रहेगा. You just have to figure out where and which profile you will be using to solve. And exactly wordings रहेगा. So सबसे पहले एक इक्वेशन लेते हैं, ax square plus bx plus c is equal to 0. Let's start with profile 1. ध्यान से सुनिए. Profile 1. अब प्रोफाइल में बोल रहा है if both roots of an equation, so there are 2 roots, quadratic है तो 2 roots, we know, you know, everybody knows. 2 रूट है, दोनों रूट एक नंबर से, एक गिवन नंबर है अपने पास, दोनों रूट जो है वो नंबर से ग्रेटर है. सो व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर k, let's take a number k. There are 2 roots of a quadratic equation and both the roots are greater than the number k. So I'll write if both roots of the equation are greater than the number k. If both roots of the equation are greater than the number k. अच्छा, k is what? Any constant. ठीक है? For our understanding, देखो ध्यान से देखेंगे. k यहाँ पे, ठीक है? k यहाँ पे है, या तो मेरा इक्वेशन ये है अल्फा, ये है बीटा. बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन नंबर के, या तो मेरा इक्वेशन ऐसा है गाइस, ठीक है, दोनों इसमें. सो ये है के. एग्जांपल देता हूँ, चलो k 10 है, अल्फा बीटा का वैल्यू 11 और 12 है, ठीक है. बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन द नंबर के, सो वी हैव टू कंसिडर 3 कंडीशन. और देखो ये रूट्स है, रूट्स अगर याद रहेगा तो ये वर्टेक्स है मेरा, -b/2 है, अगर तुम लोग को याद रहेगा तो. एंड y का वैल्यू 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a 2a 2a 4a 4a कि 2a. श्योर? चेक करो, याद रखना है. 4a की 2a गाइस, ये मेरा वर्टेक्स है. x का वैल्यू क्या है? -b/2 है, या तो उसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हैं. नाउ दिस इज प्रोफाइल. अब इस पे देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ है, a equal to 0 is not
पॉसिबल। ऑब्वियसली सबको पता है, बट आई एम जस्ट मेंशनिंग। क्यों? क्वाड्रेटिक बोला, क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर प्रेजेंट होना चाहिए एंड बोथ द रूट्स विल बी ग्रेटर देन के, स्मॉलर नहीं ग्रेटर। तो मैं बोलूँगा कि ये प्रोफाइल 1 है। अब प्रोफाइल 1 चेक करने के लिए आई विल बी चेकिंग 3 कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन, d should be greater than equal to 0, minus b by 2a should be greater than k। देखो ठीक है, because they have said that it is greater than, तो discriminant, obviously discriminant has to be greater than equal to 0, discriminant cannot be less than equal to 0। discriminant greater than 0 मतलब first condition and second condition when a is positive। अब a के बारे में कुछ बोला नहीं है, so I have checked the discriminant, I have checked minus b by 2a and the last value is k को भी इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, तो I will check that f of k is greater than 0। ठीक है, मतलब k has to be positive, f of k has to be greater than 0, f of k has to be greater than 0। सो प्रोफाइल 1 में हम 3 चीज चेक करेंगे। सबसे पहले मैंने डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माय रूट, माय x का वैल्यू, माय वर्टेक्स माइनस b by 2a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन k, आई एम सॉरी, एंड द लास्ट इज f of k। मैं जब k मेन इक्वेशन में डालूंगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, और तीनों को मिला के जो आंसर आएगा, जो तीनों में कॉमन है, दैट विल बी द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन लेते हैं, से फॉर एग्जांपल, okay, using this, that is profile 1, हम बोलेंगे find the value of d for which both roots of the equation x square minus 6dx plus 2 minus 2d plus 9d square equal to 0 exceeds 3, exceeds 3, both roots exceeds 3। ठीक है, क्वाड्रेटिक बना के दिए, कुछ जम्बल्ड अप नहीं है, परफेक्ट क्वाड्रेटिक दिए, a का वैल्यू है, b का वैल्यू है, c का वैल्यू है। मैंने देखा बोथ रूट्स आर ग्रेटर, क्वाड्रेटिक के परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बना रहा, d का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आई हैव टू चेक दीज 3 कंडीशंस। तो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट कंडीशन। माय फर्स्ट कंडीशन इज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट मतलब -6d द होल स्क्वायर -4 into 1 into 2 minus 2d plus 9d square should be greater than equal to 0। Now this will become, if I open the bracket, this will become, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 36d square minus 8 plus 8d minus 36d square is greater than equal to 0। ये निकला, ये निकला, 8d minus 8 is greater than equal to 0, therefore d is greater than equal to 1। फर्स्ट आंसर है। सो फर्स्ट सॉल्व किया, मुझे मिला है कि d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड देखो, माइनस b by 2a शुड बी ग्रेटर देन k। लेट्स स्टार्ट विद सेकंड कंडीशन, माइनस b by 2a। सो आई विल टेक माइनस b by 2a विल बिकम माइनस ऑफ माइनस 6d अपॉन 2 into 1 which is 6d, okay, 6d 3d sorry is equal to 3d। ये तो कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, अब मुझे आगे 3d वैल्यू, ठीक है 3d। अब दिस शुड बी ग्रेटर देन k। अब k का वैल्यू देखो क्या है, इट शुड बी ग्रेटर देन नंबर k, एक्सीड्स 3 बोला है, देयरफॉर ये हो जाएगा 3d ग्रेटर देन 3। एंड यहाँ पे जब 3 3 निकल गया, गाइज आई एम गेटिंग d इज ग्रेटर देन 1। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक का आंसर आ गया d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक का आंसर आ गया d इज इक्वल टू 1। अब मुझे ये तो मालूम है कि 1 इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज आई हैव टू टेक द कॉमन पार्ट ऑफ बोथ, एंड कॉमन पार्ट ऑफ बोथ में d इज इक्वल टू 1 इंक्लूड नहीं होगा। तो माई आंसर भी टिल दीज 2 कंडीशन, माई आंसर भी राउंड ब्रैकेट 1 to infinity। बट सब ये भी बाकी है, f of k शुड बी ग्रेटर देन 0। कुछ नहीं करना है, थर्ड कंडीशन लेंगे, पहले f of k निकालते हैं।
हर जगह जहाँ पे x है वहाँ पे k आएगा, ठीक है। सो दिस विल बिकम k स्क्वायर माइनस 6dk, अच्छा सॉरी f ऑफ 3, k का वैल्यू तो दिया है, k का वैल्यू 3 बेसिकली, f ऑफ 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 6d इंटू 3 प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d square. I'll simplify this. 9 minus 18d plus 2 minus 2d plus 9d square. 9d, this will become 9d square minus 18d minus 2d is minus 20d and this will become plus 11. Quadratic बन रहा है. So 9d square minus 9d माइनस 11d प्लस 11. अगर मैंने 9d कॉमन ले लिया सो दिस विल बिकम d माइनस 1 माइनस 11 d माइनस 1. कंडीशन क्या है? इट शुड बी ग्रेटर देन 0. अब देखो यार गाइस, इट शुड बी ग्रेटर देन 0. अब जैसे ही दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, विल गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है. d का वैल्यू देखो क्या है, 1 है और 11/9 है. सो ये हम लेंगे 1, ये हो जाएगा 11/9, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस. कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन 0. देखो ग्रेटर देन 0. एंड गाइस अगर ग्रेटर देन 0 बोला तो कुछ नहीं करना है. सो ग्रेटर देन 0 मतलब d बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी. सो माई आंसर वुड बी माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 11/9 टू इन्फिनिटी. ठीक है, 3 आंसर है आपके, तो ये थर्ड आंसर है, ठीक है. लेट्स प्लॉट द 3 आंसर्स ऑन अ नंबर लाइन. लेट्स प्लॉट द 3 आंसर्स ऑन अ नंबर लाइन. ये मैंने नंबर लाइन बना दिया, अच्छा खासा नंबर लाइन बना दिया. इसको हमने ले लेंगे माइनस इन्फिनिटी, इसको हमने ले लिया प्लस इन्फिनिटी. माइनस इन्फिनिटी ले लिया, प्लस इन्फिनिटी ले लिया. मेरा सबसे पहला वैल्यू, सबसे पहले डी पहले 1 ले लेते हैं. अब देखो यार 1 था, एक था इंक्लूडेड, ठीक है, एक इंक्लूडेड था, तो यहां से लेकर यहां तक जाएगा. एंड ऑब्वियसली इन्फिनिटी इज नॉट इंक्लूडेड. सेकेंड नॉट इंक्लूडेड दिया था, थर्ड इज माइनस इन्फिनिटी टू 1, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड. एंड 11/9, इसको प्लॉट ही नहीं किया, चलो 11/9 यहाँ पर ले लेते हैं. सो 11/9 वो भी इंक्लूडेड नहीं है, टू इन्फिनिटी. अब अगर ध्यान से देखोगे तीनों को तो एक पार्ट रिपीट हो रहा है. अब मैं बताऊंगा कौन सा पार्ट रिपीट हो रहा है. देखो ध्यान से, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये पार्ट जो है, यहां से लेकर यहां तक ना, ये पार्ट रिपीट हो रहा है. देखो ये पार्ट रिपीट हो रहा है. ओके, सो फाइनल आंसर इज माई d बिलोंग्स टू 11/9 not included up till infinity. So this is the value using all 3 conditions, and my 3 conditions are discriminant should be greater than equal to 0, minus b by 2a, that is vertex का x coordinate, that should be greater than 0, greater than k, and the last value जो भी रूट दिया रहेगा, f of यहाँ पे 3 दिया तो f of minus b by 2 should be greater than 3. ये देखो यहाँ पे minus b by 2 should be greater than 3, ये लिखा है यहाँ पे. And the last condition is f of k, यहाँ पे in this condition the example is 3, so f of 3 should be greater than 0, and combining each and everything we have got this value. Anybody has any doubt? So profile बहुत important है, तुमको सिर्फ ये याद रखना है कहाँ पे क्या यूज करना है. Anybody has any doubts here? We'll go on to next profile, that is profile 2. Okay, अच्छा प्रोफाइल है ये. Profile 2, when both roots lie
when both roots lie opposite to k, when both roots lie opposite to k. अब ऑब्वियसली तुमने दिमाग में तो बना ही लिया रहेगा कि ग्राफ कैसे रहेगा. when both roots lie opposite to k, हम फिर भी बनाएंगे, ठीक है. समझो ये है मेरा, ये है k, इसको ले लिया अल्फा, इसको ले लिया बीटा, ये तो वैसे वर्सा है, इसको ले लिया अल्फा, उसको ले लिया बीटा. बोथ रूट्स लाई ऑपोजिट टू के. अब यहाँ पे ना मारामारी होता है. वी सबसे पहले वी डोंट नो कि अरे के बीच में है, कौन किसके साइड में है, द वर्टेक्स शुड बी ग्रेटर, शुड बी लेस, अगेन नो आइडिया. बहुत कंफ्यूजन रहेगा. तो व्हाट वी चेक इज, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का जरूरत ही नहीं रहेगा. वी डोंट नीड, यहां पे लिख रहा हूं मैं, वी डोंट नीड डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब सेकेंड पार्ट, माइनस बी बाई 2 है, हम लोग बता ही नहीं सकते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. मुझे पता ही नहीं, ये पॉसिबल है कि वो के से लेस हो सकता है, के से ग्रेटर हो सकता है. वी हैव नो आइडिया, वी हैव नो आइडिया एट ऑल. सो एक ही बचता है, लास्ट वैल्यू इन द, जो मैंने एफ ऑफ के लिखा था, इन हियर आल्सो वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग, दैट द ओनली थिंग दैट यू विल चेक इज एफ ऑफ के लेस देन 0. ठीक है. What will be showing is f of k should be less than 0. f of k should be less than 0. याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. हम लोग सिर्फ ये चेक करने वाले, ये हम सिर्फ ये चेक करने वाले. सो एनी क्वेश्चन, मुझे पहले देखना है कि दोनों रूट्स अगर ग्रेटर है, प्रोफाइल 1, बीच में है प्रोफाइल 2. ओके, प्रोफाइल 2 आ गया तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं प्रोफाइल 2 का. Find k for which roots of equation ओके, ये इक्वेशन दिया, has its roots on either side of 2. has its roots on either side of 2. समझो ये है मेरा वैल्यू. ओके, फाइन, फॉर फाइंड के फॉर विच द रूट्स has its find k for which the equation, हाँ, has either of 2. अब देखो ये ना अल्फा एंड बीटा रहेगा, तो k दिया है मेरे को, यहाँ पे दिया है 2 दिया है. अब एक जगह अल्फा, एक जगह बीटा है. सो what I am going to do, I am going to check f of k is greater than 0. k दिया है 2, so I will to write f of 2 is less than 0. मैंने x की जगह चुपचाप 2 डाल दिया, तो 2 स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इंटू 2, एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इंटू 2 प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 इक्वल टू 0. 4 माइनस 2k माइनस 2 प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 लेस देन 0. ठीक है, ये हो जाएगा k स्क्वायर, बिकॉज k स्क्वायर कोई और टर्म है नहीं, माइनस 2k प्लस k बिकम्स माइनस k. 4 minus 2 minus 8 becomes minus 6 less than 0. k minus 3 k plus 2 less than 0. मुझे क्वाड्रेटिक मिल गया, k minus 3 k plus 2 less than 0. कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बनेगा हम, ठीक है, ऐसा कर दिया. मेरा रूट्स क्या है, माइनस 2 3 प्लस माइनस प्लस, बीच का वैल्यू है माइनस 2,3, तो आई राइट माइनस 2. Has everybody understood this? Anybody has any doubts here? Has everybody understood this? ठीक है, चलो प्रोफाइल 1 प्रोफाइल 2 लिख लेंगे पहले हम लोग. Now next is profile 3. Profile 3. Now, when both roots
are confined between K and E. अब देखो K and E के बीच में दो रूट्स. Think of it as like this. This is your K, this is your E, this is alpha and this is beta. Now both roots are between K and E. अच्छा ये ऐसे भी हैं. So both roots are between K and E. अब यहाँ पे you have to be a little careful. एक रूट K से बड़ा है बट वही रूट E से छोटा है. दूसरा भी रूट बीटा इज ऑल्सो ग्रेटर देन K बट बीटा इज लेस देन. तो एक रूट से दोनों बड़े हैं और एक रूट से दोनों छोटे हैं. रिमेंबर दिस. तो दोनों एक रूट दो, ये जो है वैल्यू ये दोनों रूट से छोटा है और ये जो वैल्यू है ये दोनों रूट से बड़ा है. सो सबसे पहले द फर्स्ट कंडीशन, वी ऑल नो द कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब मेरा जो वर्टेक्स है वो दोनों के बीच में लाया करेगा. मेरा जो वर्टेक्स है -b/2 है वो दोनों के बीच में लाया करेगा. सो सी, मेरा जो वर्टेक्स है वो दोनों के बीच में लाया करेगा. आई रिपीट अगेन, मेरा जो वर्टेक्स है वो दोनों के बीच में लाया करेगा. सो -b/2 विल लाई बिटवीन K एंड E. मेरा जो वर्टेक्स है दोनों के बीच में लाई करेगा. एंड obviously when I say f of K and f of E, दोनों के लिए it has to be greater than 0. ठीक है. So when I solve this, I understand that both should be greater than 0. Okay. Now let's do a question. ठीक है. x square plus k minus 3x plus 9 equal to 0, alpha not equal to beta, alpha comma beta belongs to -6, 1. Find k. They lie between -6, 1. They lie between -6, 1. सबसे पहले I'll check for discriminant. The first part लेते हैं हम लोग discriminant. Discriminant is greater than equal to 0. b square minus 4ac greater than equal to 0. k square plus 9 minus 6k minus 36 greater than equal to 0. k square minus 6k minus 27 greater than equal to 0. k minus 9 k plus 3 greater than equal to 0. k minus 9 k plus 3 greater than equal to 0. minus 3 9 plus minus plus. So k belongs to minus infinity to minus 3 union 9 to infinity. First answer. First bracket greater than equal to 0. So square bracket. ये फर्स्ट आंसर आ गया. सेकेंड -b/2 है. अब मुझे पता है, तुमको पता है कि वर्टेक्स है -b/2 है. एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज योर रूट. वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट इज -b/2 है. सो एंड वैल्यूज भी दिए -6, 1. सो आई राइट -6 लेस देन -b/2 है. -b/2 है. सेकेंड पार्ट यहाँ पे लेते हैं. सेकेंड पार्ट -6 less than minus b/2a less than 1. -12 less than 3 minus k less than 1. I will subtract minus k. ठीक है. 83 हो जाएगा, 2 हो जाएगा. less than 3 minus k less than 2. I will subtract 3. जैसे मैं subtract 3 करूँगा, -15 लेस देन -k लेस देन -1. एंड अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया सो 15 ग्रेटर देन k ग्रेटर देन 1. तो लेस देन के ऑपोजिट हो जाएगा ग्रेटर देन. इक्वल टू नहीं लेंगे, ग्रेटर देन लेंगे.
ठीक है, बीच में लाई करेगा. सो नाउ माई वैल्यू इज दिस. तो अच्छे से लिखते हैं 1 लेस देन के लेस देन 15. ये मेरा सेकेंड पार्ट हो गया. So first part is taken care of, second part is taken care of. Third part, f of k is minus 6. Third part लेंगे. Let's find out f of minus 6 और क्या condition देखो, greater than 0 है. Profile 3 है ये. Greater than 0. तो I will put 6 here. So it will become 36 minus 6 into k minus 3 plus 9 greater than 0. 36 minus 6k plus 18 plus 9 greater than 0. 18 plus 9 becomes 27. अगर मैंने 6k ले लिया, 36 plus 9 becomes 45. 45 plus 9, 54. 54 plus 9 becomes 63. So I'll get minus 6k greater than minus 63. Has everybody understood this? Minus 6k greater than minus 63. I divide by minus, so 63 by 3 becomes 31 by 2. So k is less than 31 by 2. So I've guessed 21 by 2. 21 by 2. So third का आंसर है 21 by 2. ठीक है, चारों को अपने को टेबल बनाना है. थर्ड का आंसर हो गया. Now let's go on to the fourth part. Fourth part is f of e is greater than 0. e का वैल्यू है 1. Fourth part, f of 1 greater than 0. So my equation will become, if I solve this, f of 1 will become greater than 0. So 1 plus k minus 3 into 1 plus 9 greater than 0. K minus 3 plus 10 greater than 0. K plus 7 greater than 0. K is greater than minus 7. So we have checked all the condition, first, second, third और fourth condition. अब हमको सबको plot करना है. So we'll just going to write all the 4 conditions together. So सबसे पहला condition लेंगे हम लोग. This is the first condition. Minus infinity to minus 3, 9 to infinity. So first condition is minus infinity to minus 3 union 9 to infinity. My second condition is 15. 1 less than 1 less than k less than 15. 1 less than k less than 15. My third condition, if you check, my third condition is k is less than 21 by 2. K is less than 21 by 2. And my fourth condition, k is greater than minus 7. अब थोड़ा केयरफुली हमको टेबल बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं. तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया मेरा प्लस इन्फिनिटी. ठीक है, सबसे पहले ये प्लॉट करेंगे. -3 9 पहला प्लॉट कर लेते हैं. मैंने -3 यहाँ पे ले लिया, मैंने 9 यहाँ पे ले लिया, मैंने 1 और 15 ले लिया. इसको 1 ले लेते हैं, इसको 15 ले लेते हैं. 21 by 2 इज़ 10.5. सो 21 by 2 यहाँ पे ले लेंगे एंड -7. सो लेट्स टेक दिस एज -7. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इज माइनस इन्फिनिटी टू -3. ये है माइनस इन्फिनिटी टू -3 एंड 9 टू इन्फिनिटी. ठीक है, 1 से लेकर 15 सेकेंड. ये सेकेंड है. अच्छा, ये इंक्लूडेड है, included. This is included. Third is k is less than. ये यहाँ तक आएगा. And the fourth is k is greater than -7. तो इसको यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएगा.
ठीक है, ये है. नाउ इफ आई केयरफुली सी, यहाँ पे चारों रिपीट नहीं हो रहा है, चारों रिपीट वहीं पे हो रहा है. अब चारों देखो, ये पार्ट है ना, दिस इज द पार्ट, दिस इज द पार्ट वेर इट इज रिपीटिंग. ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला, दिस इज द पार्ट दैट इज रिपीटिंग. So my k का value is k belongs to 9,21/2. This is the value that is being repeated. So this is your profile 3 where I have to check for 4 conditions. Discriminant, my vertex का x coordinate, my f of my roots जो values दिया है, that is the first value, it has to be greater than 0, and the last value it also has to be greater than 0. Did you guys understand this? So currently we have done 4 profiles. Profile 1 में 3 कंडीशन हमने चेक किए. Profile 2 सबसे easiest था क्योंकि we couldn't determine because के बीच में लाया था मेरे दोनों रूट्स के, तो we only had to check one condition. Profile 3 में we had to check 4 conditions where they lie on either side, they are bounded, confined between the roots. अब आता है last profile. Okay, the last part of the chapter, the last profile, profile 4. प्रोफाइल वो बोलते हैं k, i lies between the roots. ठीक है, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, they lie between the roots, okay, of ax square of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Let's make the diagram. ये है ऐसा, ये ऐसे आ गया, ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है के, ये है ई. ठीक है, ये है के, ये है ई. तो कुछ नहीं करना है, देखो f of k less than 0 and f of e less than 0, that's it. तो प्रोफाइल 1 और प्रोफाइल 2 ना, दे आर कॉन्ट्रास्ट ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर. प्रोफाइल 3 एंड प्रोफाइल 4 आर कॉन्ट्रास्ट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर. के कोमाई बीच में है, थर्ड प्रोफाइल में के कोमाई कॉर्नर्स में है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी के कोमाई जो एक्सट्रीम है उसका ऑपोजिट होगा, तो ये है ऑपोजिट. बिकॉज इसमें अगर वही मारा मारी है, -b/2 है, बोल नहीं सकते, डिस्क्रिमिनेंट कुछ पता नहीं है. सो वी ओनली नो दैट we have to check for this condition where both the values given to us, they just have to be less than 0 when we substitute in the equation. Find value of a for which roots of x square minus 2x, x square minus 2x minus a square plus 1 lie between the roots of x square minus 2 bracket a plus 1x plus a into a minus 1 equal to 0. ठीक है, लाई बिटवीन बोले द रूट्स ऑफ. अब इसका रूट्स निकालना है. अब ना इसका रूट्स मेरे पास है नहीं, अब मुझे कुछ भी करके इसका रूट्स निकालना. तो लेट्स फाइंड आउट कि कैन आई फाइंड इसका रूट्स और नो. इससे रूट्स मिलेगा मेरे को. अभी समझो मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ओके, ये x2 माइनस 2ax माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0. ओके, x square minus 2x minus a, ये दिया है मेरे को. दिस इज द इक्वेशन गिवन, ओके, एंड दिस इज द इक्वेशन गिवन फॉर विच द रूट्स ऑफ, अब इट लाइज बिटवीन. अच्छा एक काम करो, चलो, फॉर विच द रूट्स ऑफ, इसका रूट्स चाहिए मेरे को. ठीक है, इसका रूट्स चाहिए, तो आई विल राइट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 प्लस ए, x माइनस 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0. सो x का रूट हो जाएगा 1 प्लस ए कॉमा
1 माइनस ए। गाइज ये मेरा दो रूट्स है, ठीक है। अब मेरा दो रूट्स है और ये इसके बीच में लाई करेगा, तो दे हैव गिवन दैट दीज आर द रूट्स। तो एफ ऑफ 1 माइनस ए और 1 प्लस ए। अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने का है, क्या विल सब्स्टिट्यूट एफ ऑफ 1 माइनस ए। अब अगर मैंने 1 माइनस ए डाला तो दिस विल बिकम 1 माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू 1 प्लस ए 1 माइनस ए प्लस ए इंटू a minus 1. Okay, this has to be less than 0. So 1 minus a the whole square plus twice of 1 minus a square plus a into a minus 1 less than 0. ठीक है, अब less than 0 बोला है. If I expand this, this will become 1 plus a square minus 2a plus 2 minus 2a square plus a square minus a less than 0. Okay, a square हो गया, a square will become 2a square. So 2a square minus 3a, 2a square minus 3a plus 3 less than 0. ठीक है, 2a square minus 3a plus 3 less than 0. बराबर है ना, कुछ रॉन्ग किया क्या? 2 इंटू ए स्क्वायर कट होएगा क्या, प्लस ए स्क्वायर कट हो रहेगा, माइनस 2a स्क्वायर भी ना, ओ माई गॉड, कैलकुलेशन मिस्टेक, सॉरी गाइस। ये ए स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर, ये है 2a स्क्वायर, देखा ही नहीं मैंने। सो माइनस 3a प्लस 3 लेस देन 0. सो 3a माइनस 3 ग्रेटर देन 0. सो a इज ग्रेटर देन 1. बराबर क्या, a इज ग्रेटर देन 1 आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट वेर एफ ए माइनस 1 कर लिया मैंने, बराबर है ना, कुछ रॉन्ग तो नहीं किया, बराबर है। चलो अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ए प्लस 1, यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। मैं यहाँ पे करता हूँ, चलो एफ ऑफ ए प्लस 1 हैज़ टू बी लेस देन 0। अभी एफ ऑफ ए प्लस 1 डालेंगे तो हो जाएगा ए प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 1 प्लस ए इंटू ए माइनस 1 लेस देन 0। अब एक्सपांड कर दें, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर प्लस माइनस 4a माइनस 2 प्लस a स्क्वायर माइनस a लेस देन 0। कुछ कट हो रहा है, a स्क्वायर निकला, a स्क्वायर निकला, 2a स्क्वायर निकला, 2a माइनस 4a माइनस a विच विल बिकम माइनस 2a, 1 minus 2 will become minus 1 less than 0. So 2a plus 1 greater than 0. So a is greater than minus half. So a is greater than 1, a is greater than half. और देख के मालूम पड़ता है कि a belongs to round bracket 1 comma infinity. Has everybody understood this? So these are your 4 profiles. Okay. Obviously इस पे sums भी हैं. One sum I will be giving as homework. तुम लोग गेस करोगे कि कौन सा टाइप रहेगा। सो दिस इज वन सम दैट इज होमवर्क एंड इससे योर चैप्टर कम्स टू एन एंड। फाइंड वैल्यू ऑफ के सो दैट बोथ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8kx plus 16k square minus k plus 1 equal to 0 are real and distinct and having value at least 4. Guys, ये homework, ठीक है। So officially quadratic is done and next topic we'll be starting with sequential series. Chalo, we'll stop for the day.